Hello everyone, DPM 92. Let's see what we have today. If b multiplied by a minus 1 equal to root 3b minus 1, then we need to find out the value of this given expression. Okay, divide this whole equation by b, right? Upon b, upon b, upon b. So what I'll get is this b and b gets cancelled out, this is cancelled out. A minus 1 equal to root 3 minus 1 by b. So the value of a is root 3 plus 1 minus 1 by b. Now what I'll do, I'll find the value of a square and substitute here, and at the same time value of a as well. Okay, so first of all, root 3 plus 1, I'll assume this to be one other variable x, so that it makes my calculation easy, right? Now we'll find the value of a square. A square will be x square plus 1 by b square minus 2x by b. Okay, we'll find the value of x square as well. X square is root 3 plus 1 whole square. This becomes 3 plus 1 plus 2 root 3, which is what? 4 plus 2 root 3. Okay, so I'll just write that down because it doesn't have any variables and as such anything. So 4 plus 2 root 3 plus 1 by b square माइनस 2x ऐसे ही रहने दो, x की वैल्यू यहाँ पे रखी रहने दो. अब 6a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 रूट 3 प्लस 6 बाय b स्क्वायर माइनस 12x बाय b. ओके, नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 4a. तो माइनस 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो ये हो जाएगा माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 बाई बी. सो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 बाई बी. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 12a बाई बी. A by b. This will be 12 by b. The value of a would be x minus 1 by b. So this becomes 12x by b minus 12 by b square. Now what I'll do, I'll substitute all these values that I have found out. 6 by b square and 4 by b will remain as it is, and we will substitute the values. So what I'll get is 6a square, which means 24 plus 12 root 3, right? यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं हम. 24 plus 12 root 3 plus 6 by b square minus 12x by b. राइट, माइनस 4a की वैल्यू है माइनस 4x प्लस 4 बाई बी. 12a बाई बी की वैल्यू है प्लस 12x बाई बी माइनस 12 बाई बी स्क्वायर प्लस 6 बाई बी स्क्वायर माइनस 4 बाई बी. माइनस 4 बाई बी प्लस 4 बाई बी कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 बाई बी स्क्वायर, 6 बाई बी स्क्वायर, 12 बाई बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 12 बाई बी स्क्वायर है, तो ये भी हो गया 0. माइनस 12x बाई बी प्लस 12x बाई बी, तो सब कैंसिल हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 24 प्लस 12 रूट 3 माइनस 4. x की वैल्यू क्या अज्यूम की थी मैंने? रूट 3 प्लस 1. लिख दो वापस से, रूट 3 प्लस 1. So 24 plus 12 root 3 minus 4 root 3 plus नहीं minus 4, तो ये हो जाएगा 20 plus 8 root 3. Option 3 is your answer. Okay. Next question.
In an examination, there are 50 questions. 1 mark is given for each correct and 0.25 is deducted for every incorrect. Swati attempted all the questions and scored 13.75 marks. How many questions did she answer incorrectly? Incorrectly पूछ रहा है, मान लो x questions थे जो उसने incorrectly answer किए. So correct कितने हो जाएंगे? आप y मान सकते हो, बट उससे बेटर है आप 50 माइनस एक्स मानो, एक ही वेरिएबल रखते हैं. ठीक है. So for every correct she is getting 1 marks, तो 50 minus x into 1 माइनस डिडक्ट कितना हो रहा है x में से 0.25 और उसका स्कोर कितना बैठ रहा है 13.75. ओके. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 50 माइनस एक्स माइनस 0.25x इक्वल टू 13.75. ठीक है. ये हो जाएगा 50 माइनस 13.75 इज इक्वल्स टू, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा 1.25x. दिस विल बिकम 26.25 राइट इज इक्वल्स टू 1.25x. सो x की वैल्यू आ जाएगी 26.25. 26.25 नहीं आएगा ना, लेट मी चेक. $36.25 आएगा इज इक्वल्स टू 1.25x. ठीक है. तो x की वैल्यू आ जाएगी 36.25 डिवाइड बाय 1.25. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 29. सो 29 क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय स्वाति इनकरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स. सम ऑफ कोफिशिएंट्स, जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना होता है आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो 4 माइनस 1 की पावर 20 विच इज 3 की पावर 20. दैट्स इट. ऑप्शन 4 इज योर आंसर. Okay, so whenever you need to find out the sum of coefficients of all powers of x in a expansion, binomial expansion, then all you need to do is substitute the value of x as 1 and whatever you will get is the sum of coefficients of the all powers of x. Next question, if f of x is equals to 3x plus 2 upon this, find the value of f inverse 4. ठीक है. तो इसको मान लेते हैं y is equal to 3x plus 2 upon x minus 1. अब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2. ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x इक्वल टू वाई प्लस 2. एक्स कॉमन y माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2. एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3. अब आप x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो और y को x से रिप्लेस कर दो तो हमको मिल जाता है f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3. अब हमको वैल्यू पूछ रहा है f इनवर्स 4 की, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3. योर आंसर विल बी 6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम नंबर ऑफ terms common in these two series, series 1 and series 2. series 2 तो मेरे को AP दिख रही है with first term 3 and common difference also 3. तो इनका लास्ट टर्म आप लोग गेस कर सकें तो बढ़िया होगा. 600 होगा राइट. 3333 में जाना है अप टू 200 टर्म्स, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 200. इसका जो TN है वो इसका 600 हो जाएगा. वेयर एज अगर आप फर्स्ट सीरीज देखो तो ये AP नहीं है, बट अगर ध्यान से देखो तो ये जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म है. 3 जो है वो 1 प्लस 2 है. 6 जो है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 है. सिमिलरली 10 इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है. तो आप समझो हर एक टर्म इस सीरीज का इज सम ऑफ
n natural numbers given that term it is, मतलब फोर्थ टर्म है तो सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, फिफ्थ है तो फिफ्थ, तो अगर 200th होगा तो आपको अगर पता हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट। सो इस वाले फर्स्ट सीरीज का ये T2n और ये T1n कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब कि 100 इंटू 210। पर हमको तो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द सीरीज। तो इसका तो Tn बहुत बड़ा है तो हमको चेक तो सिर्फ 600 तक का ही करना पड़ेगा क्योंकि हमको कॉमन टर्म्स चाहिए, राइट। तो अब आप समझो n इंटू एन प्लस वन बाई टू शुड बी लेस देन 600, राइट। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसके अगर इसके पास टर्म्स जो है वो उसका लास्ट टर्म ही 600 है तो हमको 600 तक ही चेक करना है। मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू सीरीज वन का जो टर्म होगा कोई सा भी टर्म वो 600 से कम होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n लेस देन 1200 और 1200 को इधर ले आओ, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1200 लेस देन 0। अब इसको आपको श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा। सो n अगर ये 0 होता तो क्या हो जाता, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 4 AC मतलब 4800 अपॉन 2a, ठीक है। सो n इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4801 अपॉन 2। अब 4801 4900 के क्लोज है तो ये कुछ तो भी 69 पॉइंट समथिंग रहेगा भाई, बिकॉज 4900 इज 70, तो 60 अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 69.3 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस 69.3 अपॉन 2। नेगेटिव वाला तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, माइनस वन माइनस 69.3, वाई बिकॉज नेगेटिव में नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकते। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वन प्लस 69.3 बाई टू, राइट। तो ये हो जाएगा 68.3 बाई टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कुछ आएगा 34.15 अराउंड। सो अगर 34.15 अराउंड आ रहा है और इसको लेस देन दैट होना चाहिए था तो n की वैल्यू हम 34 अज्यूम कर सकते हैं। इट इज सेफ टू से दैट, राइट। अब हमको इस सीरीज में S1 में हमको 34 तक चलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3 के ग्रुप बना लूं, लेट मी राइट डाउन द सीरीज 1 3 6 10 15 प्लस 6 21, ठीक है, फिर 28 ऐसे चलता जाएगा, राइट। सो आप अगर हर एक 3 का ग्रुप बनाएं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाने जाऊं, ठीक है, तो मेरे को 2 नंबर तो ऐसे मिलेंगे ही जो 3 के मल्टीपल होंगे। अब मैं 3 के मल्टीपल क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी सीरीज है S2 उसमें सारे नंबर 3 के मल्टीपल है। क्यों, देख लो, 3 का टेबल ही तो चल रहा है ना। सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 की AP है तो, ठीक है। सो मेरे को सीरीज 1 में से वही नंबर उठाने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लूं तो मेरे इट इज सेफ टू से दैट एवरी 2 नंबर्स इन दैट ग्रुप ऑफ 3 will be what, multiple of 3। so 34 को आप 3 से डिवाइड कर लो तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो 11 स्लैब्स बनेंगे 3 के, उसमें से हर 2 नंबर 3 के मल्टीपल होंगे। तो 11 इंटू 2 विच मीन्स 22 टर्म्स होंगी जो सीरीज 1 और सीरीज 2 में कॉमन होंगी, राइट। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपांड कर दूं, ये सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 ऐड किया, यहाँ पे 6 ऐड किया, यहाँ पे 7 ऐड किया, यहाँ पे 8 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 36,
यहाँ पे 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये और एक और ग्रुप बना, तो यहाँ पे देखो 36 और 45 अगेन ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे आप आगे जब करते जाओगे तो ऐसे 11 स्लैब्स बनेंगे जिसमें हर 2 नंबर 3 के मल्टीपल होंगे, विच मीन्स 11 into 2 22 numbers will be common in series 1 and series 2. So your answer will be option 2. Okay, so that's it for today's DPM guys. See you tomorrow.